Good morning, everybody. Thank you for coming on this Saturday at 10 a.m. I know that's no easy task, but I'm sure we'll make your time worthwhile, and you'll have a great experience. My name is Jay, and I'm the founder of Lily's Voice. And basically, our we're an incorporated nonprofit, and our objective is in Nagpur. We want to do one on-site rescue, as well as a lot of capacity building initiatives to create exactly what Ms. Kamna was just talking about, which is an empowered, encouraged, and active community. So our objective is to use these four folds, like one, on-site rescue via Paravet, two, educational seminars, three, educational workshops for children, and four is advocacy and support to for all the great work that's already being done in Nagpur. Our ground team is led by two magnificent individuals who are extremely committed to animal welfare, and Nikita is one, and Priyanka the other. And I'd appreciate if you guys can all, those of you who didn't get the chance to register, if you could drop your emails and your phone numbers in the chat. We'd love to get in touch with you and hear from you as well on what your experience was like. So yeah, be sure to please follow us. Visit our website if there's anything that's uncertain. Contact us by email, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. We're on all of those platforms, so just give us a follow, and we'd be happy to discuss and share more. So I'd like you all for the case of the webinar I'd request everybody to remain muted. And like I mentioned, please leave your numbers and emails in the chat if possible. And without further ado, let's get to the main event of the evening here. Let me stop sharing my screen. So it is my great pleasure to introduce Ms. Kamna Pandey. Ms. Kamna Pandey is an experienced and tireless individual working for the betterment of animal welfare all across India. Having started movements like India Unites for Animals and a worldwide boycotting campaign against the culling of dogs in various parts of India, she is now an SPCA member and runs an NGO called For Compassion. In addition, she has carried out numerous awareness campaigns and welfare forums, as well as having repeatedly pursued legal action against animal cruelty. I'm certain that this webinar will leave all of the individuals partaking in more empowered on what they can do in terms of their legal availabilities, as well as far more knowledgeable. So without further ado, I'd like to give the floor to Ms. Kamna Pandey. So, okay, hi, I am Kamna Pandey, and I'd like to introduce myself as an animal volunteer, an animal rights activist, and we have a lot to talk about. So let's get straight to the point. We are doing this webinar today. We are all here. हम यहाँ पे मौजूद हैं because we feel bad for animals. When someone does anything bad to animals, हमें तकलीफ होती है. हम चाहते हैं ये रुक जाए, इसको रोका जाए. We want that animals lead a better life. Animals को बेहतर जिंदगी मिल सके. But sometimes हमें ये नहीं समझ में आता कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं. What can we do about it? There are certain cities जहाँ पर animal welfare बहुत advanced stage में है, जहाँ पर सब कुछ बहुत organized है. आप एक कॉल कर देते हो तो वहां पर एक लीगल टीम होती है, एक कॉल कर देते हो तो रेस्क्यू टीम होती है, एक कॉल कर देते हो तो बहुत सारे वॉलंटियर्स इमीडिएटली आ जाते हैं. कहीं कहीं पर ये एडवांस स्टेज में है एंड होपफुली एक दिन सब जगह ऐसा हो जाएगा. बट वी ऑल्सो नो दैट ये सिर्फ कुछ ही सिटीज में है. बाकी की सिटीज अभी भी जिसे हम कहते हैं ना स्टोन एज होती है एनिमल वेलफेयर की. आपको कुछ जानवर दिख जाता है जो तकलीफ में है या कोई क्रूल्टी कर रहा है तो आपको you have to do everything yourself. आपको खुद ही करना पड़ता है. एंड a lot of times हमें नहीं पता होता कि किस केस में क्या किया जाए. बहुत सारे टाइम्स पे ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं
बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, एवरी डे आई एम फ्लडेड विद कॉल्स. पीपल डोंट नो, दे फील बैड, बट दे डोंट नो कि अगर किसी डॉग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, किसी ने इंटेंशनली चढ़ा दी है, या एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या कुछ किया जा सकता है. मतलब ये दूर दूर तक उन्हें अकर भी नहीं करता कि यस, आप उसके लिए आप कोई एक्शन ले सकते हो. किसी ने डॉग को मार दिया है, अ लॉट ऑफ टाइम्स मुझे ये कहा जाता है कि आई डोंट नो किसने किया है, हमें नाम नहीं पता. तो ऑब्वियसली अगर किसी इंसान का भी खून होता है, तो क्या हमें हमेशा से शुरुआत से पता होता है कि किसने किया है खून? नहीं पता होता. तो आप अज्ञात के खिलाफ, अनोनिमस के खिलाफ आप एफआईआर फाइल करते हो. मैं बार बार लीगल एक्शन और एफआईआर की बात कर रही हूँ. इसलिए कर रही हूँ बिकॉज बिना लीगल एक्शन के, बिना एफआईआर के, हम लोगों ने मतलब बहुत सालों से हमने बहुत कोशिशें करी हैं. हमने कई तरीके ट्राई किए, नथिंग एवर वर्क्स. मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में जो लोग एनिमल क्रूल्टी करते हैं, जो लोग इस तरह की सिचुएशन जहां मतलब पैदा करते हैं, जहां हमें लीगल एक्शन के बारे में सोचना पड़ता है, ये लोग मुझे लगता है बहुत ही कठोर लोग होते हैं. पता नहीं इंसान अंदर से होते भी हैं कि नहीं होते हैं. इनको प्यार की भाषा नहीं समझ में आती है. इनको इंसानियत, अगर इतनी इंसानियत इनके अंदर होती, तो ये न्यूट्रल भले ही रहते, पर ये कम से कम क्रूल्टी नहीं कर सकते. आप अपने आप को इमेजिन करके देखो, आप क्या किसी किसी कुत्ते के ऊपर आप क्या मिट्टी का तेल डाल के उसको जला सकते हो? इज इट पॉसिबल? आप नहीं कर पाओगे. आप किसी को कुचल के मार सकते हो? आप नहीं कर पाओगे. आप रॉड लेके नहीं, ये संभव नहीं है. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स के लिए ये संभव नहीं है. तो जो लोग ये करते हैं, रिसर्च कहती है कि वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड लोग होते हैं. इनको रोकने का एक ही तरीका है, वो है कि ये लीगल एक्शन फेस करें. बहुत क्वेश्चन नहीं करना चाहिए हमें कि लीगल एक्शन से क्या होगा, एंड आई विल कम टू इट कि क्या क्वेश्चंस आते हैं. बहुत क्वेश्चन मत करें, हम अपना धर्म निभाएं, और उसके आगे क्या होता है उस पे इतना ज्यादा फोकस ना करें कि अरे वो तो छूट ही जाना है. छूटता तो मतलब आई विल कम टू इट, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, आई विल कम टू इट. बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जब आप कोई एनिमल क्रूल्टी होते देखें, मोस्ट डेफिनेटली यू मस्ट फाइल एन एफआईआर. कैसे फाइल करना है, वी विल गो थ्रू द प्रोसेस, बट आप पुलिस को अप्रोच करिए. मैं ये नहीं कहती कि आप जाओगे पुलिस के पास. इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो फर्स्ट रिएक्शन जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि अब हम यहाँ पे कुत्ता बिल्ली की ही रिपोर्ट लिखने के लिए बैठे हुए हैं, इतने क्राइम हो रहे हैं, हम इंसानों को छोड़ के अब कुत्ता बिल्ली करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली आपको इस टाइप के रिएक्शंस मिलेंगे, विच इज वाई यू नीड टू नो योर राइट्स, विच इज वाई यू नीड टू नो कि आपकी एफआईआर को कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? दैट इज वाई हमने आपसे बोला है कि आप कुछ चीजें जरूर से नोट डाउन करिए. और जो लोग और ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप अगर अपना ईमेल आईडी यहाँ पर चैट में छोड़ेंगे, सो आई वुड रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग आपको अटैचमेंट्स दिखाएंगे, आपको जो भी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको सेपरेटली ईमेल कर देंगे. राइट? सो okay, so before we start, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने पहले कहा था कि लव कंपैशन इज वेरी कंटेजियस. आप खुद एक, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके आसपास, सोसाइटी बदले, उनका एटीट्यूड बदले, तो आप सबसे पहले अपने आप का एटीट्यूड पब्लिकली इसको, किसी को नाटक समझना है समझने दीजिए, बट आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स homeless animals, towards all animals, should be full of love, full of compassion, full of kindness. आपको देख के, ट्रस्ट मी, आपको पता चले या ना चले, बट आपको देख के बहुत से लोग इंस्पायर होंगे, बहुत से लोग चेंज होंगे.
कभी कभी मैं बहुत डिप्रेस्ड होती हूँ ना, एनिमल्स की कुछ घटना हो जाती है और मुझे बहुत खराब लग रहा होता है, I sometimes go into my inbox and इतने ब्यूटीफुल से मैसेजेस होते हैं कि uh, ऐसा देख के अब मैं ये करने लगा हूँ, अब मैं खिलाने लगा हूँ, अब मैं अपने मेरे घर के पास के 10 कुत्तों को मैं खिलाता हूँ, मैं 20 कुत्तों को खिलाता हूँ, और मैंने ये आपको देख के मैंने ये FIR फाइल करी, एंड अब वो आदमी परेशान नहीं करता है. सो आई सी दिस, आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, मुझे डायरेक्टली नहीं पता होता, बट आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं. एक और चीज आई वुड से, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इनको नॉर्मली बच्चों को आवारा, जंगली कुत्ते, आवारा कुत्ते, खूंखार कुत्ते, नरभक्षी कुत्ते, इस टाइप के शब्दों को कभी मत टॉलरेट करिए. इंग्लिश में वी कॉल देम होमलेस एनिमल्स और कम्युनिटी डॉग्स. Don't let anybody call them stray animals. आवारा इंसान हो सकते हैं, जानवर नहीं होते आवारा. वो बेघर हो सकते हैं, निराश्रित हो सकते हैं, पर वो आवारा नहीं होते, जंगली नहीं होते. वो जंगल में नहीं रहते. जो जंगल में रहता है वो जंगली होता है. सो why is language so important? So many times people ask me कि आप इतना क्यों लड़ लेते हो मतलब लैंग्वेज के लिए. आपको पता है गांधी जी ने कितना बड़ा मूवमेंट किया सिर्फ हरिजन शब्द देने के लिए. क्यों? क्योंकि जब तक आप लैंग्वेज नहीं चेंज करोगे ना, मेंटालिटी चेंज, सोसाइटी की मेंटालिटी चेंज होने का रास्ता वहीं से शुरू होता है. आई ऑलवेज ऑब्जेक्ट ऑन ऑल दीज रिडिकुलस पोएम्स जो बच्चों को सिखाई जाती है. सो लैंग्वेज एंड योर एटीट्यूड इज पॉइंट नंबर 1. यहां से हम बिगिन करते हैं. चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम. Okay, so having said that, now we come to this कि अगर कोई घटना हो गई है आपके पास, किसी भी तरह की, आप फीडर हो, कोई आपको फीडिंग करने से रोक रहा है, कोई क्रूअल्टी कर रहा है, आपको ये नहीं मालूम कि क्या है क्रूअल्टी, क्या ये किसी लॉ, इसके ऊपर भी लॉ लगेगी. किसी ने गर्म पानी फेंक दिया कुत्ते पे, किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया. अब आप सोच रहे हो कुत्ते की जान तो गई नहीं, तो क्या इस पे भी FIR फाइल की जा सकती है? या उसने केवल टांग तोड़ दी, उसने उठा के नवजात बच्चों को, न्यूली बॉर्न पप्स को पॉलिथीन में करके फेंक दिया, कहीं रिलोकेट कर दिया. ये बहुत कॉमन है. इस तरह की चीजें क्या, या कोई अपने खुद के कुत्तों को 24 घंटे चेन से बांध के रख रहा है, उनको घुमा नहीं रहा है, मार पीट रहा है, उसके अपने कुत्ते हैं, तो आप ये सोच रहे हो कि क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि उसका अपना कुत्ता है. तो let me tell you, the most beautiful part about Indian animal welfare law is the definition of cruelty. Okay, so if we can have, Jay, can we have the definition of cruelty? Sure, just a second. Yeah. तो हमारे जो इंडियन लॉ कहती है, ABC अलग अलग डेफिनेशंस है, लेकिन उसके साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेंटेंस है कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे जानवर को कष्ट या पीड़ा पहुंचे. So if we can see this, if anyone treats any animal such as to subject it to unnecessary pain or suffering, right? ये बहुत बहुत ही बड़ी डेफिनेशन है, बहुत ही. इसमें कोई भी ऐसा कार्य जिससे उसको कष्ट या पीड़ा पहुंच रही है, तो वो क्रूअल्टी है. ये हमारे लॉ की डेफिनेशन है. तो अगर ठंड में वो ठंडा पानी डाल रहा है, तो उसे अननेसेसरी पेन या सफरिंग हो रही है, राइट? अगर कोई भी
सोते हुए कुत्ते को ऐसे ही लात मार दे रहा है, दैट इज ऑल्सो क्रूरल्टी। एनीथिंग जिसको देख के, मैं एक यूनिवर्सल, आई ऑलवेज टेल दिस टू माई वॉलंटियर्स, कि अगर कोई भी चीज को देख के तुम्हें खराब लग रहा है कि ये इसने इस जानवर के साथ ये किया, तो मोस्ट डेफिनेटली इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ क्रूरल्टी। सो ये आपके पीसीए एक्ट 1960, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 की डेफिनेशन है ऑफ क्रूरल्टी। अब इसके बाद फिर इसका बहुत कुछ इसमें है जो लिखा हुआ है। पॉइजनिंग के लिए अलग है, बीट्स, किक्स, राइड्स, ओवरलोड्स, टॉर्चर्स, हर चीज कवर्ड है। अगर दोपहर को जजमेंट्स है, बहुत ही ब्यूटीफुल जजमेंट्स हैं। आप गर्मी की दोपहर में नहीं जो वजन ढुलाई होती है नहीं करवा सकते। आप हॉर्सेस का वो जो मुंह के अंदर बिट्स वो लगा देते हैं, वो नहीं अलाउड है। चाबुक नहीं अलाउड है जो मारते हैं। ये सब हम देखते हैं, जिस तरह से चिकन्स को कैरी करते हैं उल्टा करके, ये नहीं अलाउड है। ऐसा कोई भी चीज जो आपको देख के कष्ट पहुंचता है, ट्रस्ट मी, इट इज नॉट अलाउड। अगर आपको सब कुछ नहीं पता है, एंड ऑब्वियसली आपको सब कुछ नहीं पता हो सकता है, बट गूगल सबके पास है। आप अगर गूगल करोगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि इस पे कौन सी लॉ अप्लाई की जा सकती है। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप गूगल जरूर करो। अदरवाइज देर आर सो मेनी एनिमल एक्टिविस्ट इन द कंट्री जो बहुत बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं लॉ के बारे में। आप किसी को भी अप्रोच करो, आई थिंक हम सारे ना एक कम्युनिटी है, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प ईच अदर। किसी को भी आप अप्रोच करोगे वो आपको मोस्ट हैप्पीली आपको गाइड कर देंगे। अदरवाइज मेरा नंबर इज वेरी पब्लिक, आप गूगल पे भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं दे भी दूंगी, मेरे फेसबुक पे भी है, सब जगह पे है। सो मुझे आप अप्रोच करोगे तो मैं तो करूंगी ही करूंगी, बट मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग आपको गाइड करने के लिए तैयार होंगे। दे आर ऑल वेरी हैप्पी टू हेल्प। सो जब ये इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि आपको एक एफआईआर फाइल करने के लिए तैयार रहना होगा, या जिसकी तरफ से आपको कंप्लेंट आ रही है आपको उसे कन्विंस करना पड़ेगा कि एफआईआर फाइल करो। नाउ देयर आर सम वेरी वेरी कॉमन थिंग्स दैट इज सेड कि ये मेरा नेबर है, मैं नेबर से पंगा नहीं लेना चाहता। तो प्लीज आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपके मोहल्ले में किसी और, मतलब अब सेंट्रल दिल्ली में कोई नोएडा से तो आके ना एनिमल क्रूरल्टी करेगा नहीं। जो जहां रहता है वो वहीं एनिमल क्रूरल्टी करेगा, वो वहीं के डॉग्स को मारेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी है। आपको उसको रोकना है। एंड ट्रस्ट मी, ये सारे लोग हमेशा गूंस होते हैं, ये सारे लोग बेकार लोग होते हैं, जिसे गुंडा कहते हैं ना, उस टाइप के लोग होते हैं। कोई भी शरीफ इंसान, काइंड इंसान थोड़ी ना करेगा क्रूरल्टी। सो ये जो जितने नॉर्मल रीजनिंग्स होते हैं ना कि वो गुंडा टाइप का आदमी है, मुझसे उलझ जाएगा, नो, गेट ओवर दिस। जितने बड़े बड़े गुंडा गुंडी हमने देखे हैं, एंड जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, दे नो, हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े गुंडों के खिलाफ एफआईआर्स करी हैं। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट प्रॉपर माफियाज के खिलाफ करी हैं। हमने पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ करी हैं, बहुत सीनियर लेवल के आईएएस अधिकारी। इट डजंट मैटर, नोबडी इज अबव लॉ। हमारी कंट्री में एक बहुत अच्छी चीज है कि आप अगर फॉलो अप करने का की शिद्दत रखते हो तो कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो गुंडा गुंडी कोई भी हो। एंड ट्रस्ट मी, पुलिस थाने के चक्कर कोई नहीं काटना चाहता, कोई उसमें इस सब में घुसना नहीं चाहता, राइट? सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इससे कुछ होने वाला है नहीं। सो FIR is a must, and you will see इसका इफेक्ट क्या होता है। सो FIR फाइल करने के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए होती है? एक कंप्लेंट लेटर चाहिए होता है। नाउ मैं किसी को भी क्लीन चिट नहीं देती, मैं कहती हूँ, मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि आप
को जो पुलिस स्टेशन आपका है वहां पर जब आप पहली बार जाओगे तो आपको बहुत सेंसिटिविटी नहीं मिलेगी, उल्टा इनसेंसिटिव लोग ही मिलेंगे आपको शुरुआत में। ठीक है, तो आप कभी कभी ऐसा भी आता है कि ब्राइब ले ली कहीं से दूसरी पार्टी से और उन्होंने रिपोर्ट गड़बड़ कर दी। सो पहली चीज आप ये जान लो कि जो आपका कंप्लेंट लेटर होता है वो चेंज नहीं किया जा सकता। आप रिपोर्ट गड़बड़ लगा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट गड़बड़ लगा सकते हैं, बयान आप कुछ लेके कुछ नोट डाउन कर सकते हो, सब कर सकते हो, बट आप एक चीज नहीं चेंज कर सकते, वो है आपका कंप्लेंट लेटर। सो मच सो कि अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी होगी तो वो स्पेलिंग मिस्टेक भी एज पर लॉ उनको एज इट इज कॉपी करनी है। जहां कॉमा है वहां कॉमा लगाना है, जहां फुल स्टॉप है वहां फुल स्टॉप लगाना है। सो वन थिंग इज कि आप अपना कंप्लेंट लेटर बहुत सॉलिड बनाओ। नामजद रिपोर्ट हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होती है, बिल्कुल मत झिझको, आप नामजद रिपोर्ट कराओ। जो इंसान ने जो काम किया है आप उसका नाम लिख के करो। ऑल्सो आई से कि आपको इन्वेस्टिगेशन अपने आप करना है। हम हमेशा अपनी इन्वेस्टिगेशन खुद करते हैं क्योंकि हम सब कुछ प्लेटर पे सजा के पुलिस को दे देते हैं और अपने कंप्लेंट लेटर में लिख के देते हैं क्योंकि वो उनको उस चीज को नहीं बदल सकते। सो आप सारे एविडेंसेस कलेक्ट करो। लेट अस से एनीथिंग हैज हैपेंड, एनी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैज हैपेंड, आप वहां पर देखो कि क्या किसी ने रिकॉर्डिंग करी है। आजकल कोई ना कोई तो फोन पे कुछ तो रिकॉर्ड कर ही लेता है, आप आसपास पता करो किसी ने रिकॉर्डिंग करी है। कंप्लेनेंट जो है कभी कभी वो सामने नहीं आना चाहते बट वो उनके पास रिकॉर्डिंग होती है, आप वो रिकॉर्डिंग लो। वहां आसपास देखो, लोगों के घरों के बाहर की तरफ सीसीटीवी फुटेज अगर आपको किसी की मिल सकती है, सीसीटीवी फुटेज लो। अगर कोई व्हीकल से कोई घटना हुई है तो व्हीकल का नंबर लो। वॉइस रिकॉर्डिंग्स रखो। अगर किसी से कोई आप बात कर रहे हो एनिमल क्रूल्टी के लिए, आप रिकॉर्ड करो। अ लॉट ऑफ टाइम्स ये लोग खुद ही बोल देते हैं कि हाँ मैंने मारा था 6 महीने पहले कुत्ते को, या मैंने इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, मैं आगे भी चढ़ाऊंगा। सो ये सब पुट इट ऑन रिकॉर्ड। ओके, एज मच एज पॉसिबल जितने एविडेंसेस हो सकते हैं उतने आप कलेक्ट करो, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि पुलिस हमारा फेवर की नहीं है। आप उनको इतना इररिफ्यूटेबल आप उनको एविडेंसेस दो कि वो चाह के भी कुछ कुछ गड़बड़ रिपोर्ट लगा ही ना पाए। बिकॉज अल्टीमेटली जब कोर्ट में जाएगा तो जवाब तो पुलिस को भी देना पड़ता है। जज उनसे पूछता है कि आपको ये दिया गया था, फिर आपको कैसे ये लगा कि ये क्रूरल्टी नहीं हुई है। सो जितना स्ट्रांग आप अपना केस बनाते हो उतना मजबूर कर देते हो आप पुलिस को, वो चाहे या ना चाहे, एक्शन लेने के लिए। ओके, एंड वी ऑल नो ये बेजुबान जानवर होते हैं, इनकी ओनली होप हम हैं। हम जितना करेंगे उनको उतना ही जस्टिस मिलेगा। सेकेंड थिंग, आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ, स्पेशली फर्स्ट केसेस, शुरुआत के केसेस में लोग माफी कैसे दे देते हैं। अगर किसी ने किसी पप को मार डाला और आप जब शोर मचाते हो तो वो इंसान अगर माफी मांग लेता है तो आप उसे माफ कर देते हो। आपको हक नहीं है, उसकी माँ को हक है शायद, पर आपको हक नहीं है। आप कैसे, आपके खिलाफ थोड़ी ना हुआ है, आपके खिलाफ कोई केस हुआ हो, आपके खिलाफ कोई क्रूरल्टी हुई हो, आप उसे माफ करने का हक रखते हैं। ये एक क्राइम है। अ क्राइम वंस कमिटेड, उसको जज को अधिकार है उसके ऊपर निर्णय देने का। पुलिस भी कई बार कहती है कि ये सॉरी बोल रहे हैं भाई, अब आप आपस में सुलझा लो। नो, सिविल मैटर्स में सेटलमेंट हो सकता है, क्रिमिनल मैटर्स में नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपके लेट अस से कोई बाप है जिसने अपने बेटे का खून कर दिया है, राइट? अब क्या वाइफ और वो बाप आपस में मिलके डिसाइड कर ले कि अच्छा चलो इसने माफी मांग ली है, सेटल कर लेते हैं? नॉट पॉसिबल।
बिकॉज क्राइम कमिट हो चुका है, जो कि एज पर द लॉज ऑफ दिस कंट्री वो क्राइम है। तो अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसको सेटल नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज अगर उसने एसिड डाला है, कल वो मिट्टी का तेल डाल के जलाएगा। अगर आप उनको ज्यादा एम्बोल्डन करते हो जब आप कोई घटना को अनदेखा करते हो या आप कोई एक्शन नहीं लेते हो, उनको तकलीफ का एक पार्ट महसूस करना जरूरी है। उनके घर वाले भी होते हैं ना, जो उनको समझाते हैं कि ये क्या किया तुमने, तुम्हारी वजह से रोज आके पुलिस खड़ी हो जाती है दरवाजे पे। पुलिस भी इतनी आसानी से थोड़ी ना रफा दफा करती है। अगर रफा दफा करना भी, लेट्स से वर्स्ट टू वर्स्ट, पुलिस रफा दफा भी करती है, आपको लगता है खाली शक्ल देख के कर देती है? जो चीज उनके लिए कॉस्ट मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, उस चीज के लिए उनको अच्छे खासे 10, 15, 20 हजार रुपए तो जाने पड़े ना। अगली बार वो लाठी मारने से पहले ये तो सोचेंगे ना कि 25 हजार की लाठी पड़ी, अगली बार नहीं करनी है। सो प्लीज माफी मत ना खुद दीजिए और ना ही देने दीजिए किसी को। अगर क्राइम हुआ है तो प्लीज FIR डेफिनेटली फाइल करिए, ठीक है? सो ये व्हाट्सएप चैट्स RWS के, ये बहुत कॉमन है कि RWS ने व्हाट्सएप पे लिखा है, हरास कर रहे हैं किसी को कि ये खाना खिलाता है, इन सबको बाहर कर देंगे, इन सबको बाहर फेंकवा देंगे। ये सब आप प्लीज इसको नोट डाउन करो, ओके? ये सब एविडेंसेस हैं। नाउ आई ऑल्सो टेल यू कि ये प्राइमरी एविडेंस नहीं बन सकते हैं कोर्ट केसेस में। इवन व्हाट्सएप चैट जो है ये प्राइमरी एविडेंस नहीं बन सकती, लेकिन ये सपोर्टिंग एविडेंस हो सकती है। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि ये जो पुलिस एक्शन है ये उसे इंश्योर करती है। हम अगर कोर्ट तक भी नहीं जा रहे हैं तो पुलिस एक्शन जो है ना, पुलिस रिफ्यूट नहीं कर सकती आपके FIR को फाइल करने में जितना आप एविडेंस कलेक्ट करोगे, राइट? ड्राफ्टिंग ऑफ कंप्लेंट लेटर, एक मैंने कहा नामजद करिए नाम के साथ। अगर आपको पता है वो कहाँ रहता है आप वो लिखिए, अगर आपको पता है कि उसका टेलीफोन नंबर क्या है तो आप वो लिखिए। अगर आपको उसका व्हीकल नंबर पता है आप वो लिखिए। आप जितना ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, पुलिस को उतना कारण नहीं मिलेगा कि वो लिंगर ऑन कर सकते हैं केसेस। समटाइम्स आपने नाम लिख दिया, लेटर से आपने लिखा कि अजय चतुर्वेदी ने इस कुत्ते को मारा, मेरे पड़ोस में रहते हैं अजय चतुर्वेदी, उन्होंने ये कुत्ते को मारा। अभी पुलिस जो है 10 दिन 20 दिन 50 दिन इसी में लगा देगी कि हम तो अजय चतुर्वेदी को ढूंढ रहे हैं, राइट? सो आप उसके साथ, एंड लेटर से कि आपको उसका एड्रेस नहीं मालूम, आप उसके साथ ये ऐड करो कि वो मेरे पड़ोस में रहते हैं और मैं उनके घर की शिनाख्त करा सकता हूँ। सो नाउ as I said, complaint letter cannot be changed. तो इनको ये कोर्ट को जवाब नहीं दे पाएंगे कि जब इन्होंने लिखा है तो आप 10 दिन तक क्या कर रहे थे। आप पुलिस वाले के सीनियर के पास जाएंगे तो वो IO जो होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा, उसको जवाब देना होगा कि भाई आपको अभी तक अजय चतुर्वेदी मिले नहीं, ये तो बता रहे हैं कि आप वो घर दिखा देंगे, राइट? सो जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसमें डिटेल्स डाल सके उतना आपके केस के लिए अच्छा होगा, उतना पुलिस के लिए मुश्किल होगा इसको रफा दफा कर पाना, ओके? देन नेक्स्ट थिंग, जो भी आपके एविडेंसेस हैं ये आप अपने कंप्लेंट लेटर के साथ दीजिए। अगर कोई वीडियो है, अगर कोई डिजिटल कोई भी वॉइस नोट है, कुछ भी है, अगर आपका, उसको एक पेन ड्राइव पे या CD में करके आप उसको अपने कंप्लेंट लेटर के साथ दीजिए। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट, आप अपनी कंप्लेंट लेटर में ये मेंशन करिए कि ये एविडेंसेस संलग्न है, राइट? दे आर अटैच्ड, सो वो गायब नहीं कर सकते क्योंकि आपने अपने कंप्लेन लेटर में लिख दिया है,
इसमें आप सीडी दे सकते हो, पेन ड्राइव दे सकते हो, कोई अगर पिक्चर्स हैं आप उसके प्रिंट आउट्स दे सकते हो। डेट्स जरूर लिखिए, टाइम जरूर लिखिए, जो भी आपको पता है। आई विटनेसेस, अ लॉट ऑफ टाइम्स आई विटनेसेस में क्या होता है कि उस समय तो भावना में आके उन्होंने कह दिया हाँ मैं आई विटनेस बन जाऊंगा, उसके बाद घर वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप मत दो, या नेबर्स उनके ऊपर प्रेशर डलवाते हैं। इसके लिए एक टैक्टिक हम लोग यूज करते हैं कि आप उनका वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ले लो, या आप उनका स्टेटमेंट लिख के उनसे साइन करा लो। Now, even though witnesses can always turn hostile, but this is a way we use to pressurize them into sticking to their statement कि आपका तो वीडियो स्टेटमेंट है हमारे पास, आप तो ये कह चुके हो, अब आप पीछे नहीं जा सकते, आप तो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो पुलिस को। देयर आर वेरियस वेज एंड आई वुड नॉट वांट टू डिस्कस इट ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म इतना, बट हाँ ये आपको मदद करता है। अगर आप वीडियो स्टेटमेंट लेते हो, कोई आई विटनेस होता है तो वीडियो स्टेटमेंट, रिटन स्टेटमेंट साइन करवा लो। कल क्या होगा ये नहीं पता, वो आज तैयार है तो आप आज ले लो, राइट। देन आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको असाइन होता है एफआईआर फाइल होने के बाद, उससे आपको टच में रहना है एवरी डे। आप जा नहीं सकते, आप कॉल कर लो, है ना। ये कोशिश यही करते हैं कि कितनी जल्दी हम थक जाएंगे और ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अगर आप थकेंगे नहीं तो ये केस ठंडे बस्ते में नहीं जा सकता। एक कॉल ही तो चाहिए, आप कॉल करते रहो, ओके। जो भी इंसिडेंट हुआ है आप उसका डिटेल्ड अकाउंट लिखो। मैं गया, मैंने ये देखा, वहां पर ऐसा हुआ, इस 2 दिन पहले भी इसने ऐसा किया था। कभी कभी क्या होता है कि आपको मालूम है कि इसने 6 महीने पहले भी एक कुत्ते को मारा था, अब आपके पास प्रूफ तो नहीं है उस चीज का, बट आप उसको फिर भी अपने कंप्लेंट लेटर में मेंशन करो, क्योंकि आप उस घटना की कंप्लेन नहीं कर रहे हो, आपको उस घटना की प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं है, राइट। बट इससे क्या होगा कि जब कोर्ट के सामने ये केस आएगा या किसी सीनियर के सामने ये केस आएगा और आपका कंप्लेंट लेटर एज इट इज है, तो इसको कहते हैं ये हैबिचुअल है, रिपीट ऑफेंस लॉ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां तक कि जिन केसेस में अरेस्ट नहीं हो सकती, उन केसेस में भी अगर रिपीट ऑफेंस है तो अरेस्ट अलाउड है, ओके। सो आप उसको मेंशन जरूर करो कि 6 महीने पहले भी इसने कुत्तों को मारा था या ये मारता रहा है। अगर कोई मोहल्ले में सामने नहीं आ रहा है तो आप उसमें लिख दो। दीज आर द वेज ऑफ ड्राफ्टिंग कंप्लेंट लेटर विच वी हैव कम अप विद इन सो मेनी इयर्स। कि आप लिखो कि ये मोहल्ले वालों को धमकाता है, जिसकी वजह से मोहल्ले में कोई भी सामने आके गवाही देने को तैयार नहीं है। इस तरह की चीजें आप लिखो, बिकॉज दिस गोज एज इट इज। आई कैनॉट इंसिस्ट मोर ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिटेल्ड कंप्लेंट लेटर। कोई लिमिट नहीं है, आप डिटेल्ड लिखो। चाहे वो पुलिस वाले आपसे कोशिश करेंगे कि आप इसको, ये इतना लंबा क्या आपने दे दिया है, आप बोलो मेरा कंप्लेंट लेटर यही है, मेरा अधिकार है कंप्लेंट लेटर देने का, आप अपना कंप्लेंट लेटर दो, राइट। ओके, अ फ्यू थिंग्स। जब आप जाओगे तो पुलिस वाला आपसे कहेगा कि अच्छा ठीक है आप ये छोड़ दो, आपको रिसीविंग नहीं देगा। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आपने वो कंप्लेंट लेटर पुलिस को दिया, क्योंकि आपको रिसीविंग नहीं देगा वो। आप रिसीविंग मांगो, राइट। अदरवाइज आप एक फोटोग्राफ ले लो उसके सामने। मैं ये नहीं कहती कि आप जब जाओ तो हॉस्टिलिटी फॉर्म करो पुलिस वाले, क्योंकि वही पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। मैं नहीं कहती कि आप हॉस्टिलिटी फॉर्म करो, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उनको ये बताओ कि आपको मालूम है कि इसकी रिसीविंग भी ली जाती है ना। आप उनको बोलो कि सर मुझे मैं एसपी सर को भी मिलने जाऊंगा,
या मैं सीनियर्स को मिलने जाऊंगा सर, क्योंकि मुझे ये मेनका मैम को भेजना है, मुझे ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में भेजना है। आप कुछ भी बोलो, आप बोलो मुझे इसका रिसीविंग अगर आप दे सको सर, और अगर नहीं तो सर आपका नाम क्या है, मैं आपके नाम से, अगर वो बिल्कुल रिलक्टेंट है कि मैं नहीं दूंगा रिसीविंग, तो आप उनका नाम ले लो, टाइम ले लो और आप पिक्चर खींच लो, ठीक है। जितना आप डिटेल में जाओगे, रिमेंबर दे विल बी, दे नो कि इसके रेपरकशंस क्या हैं। हाँ, समटाइम्स वो कहते हैं हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो आपको मैं ये बताती हूँ कि अगर आप एविडेंसेस के साथ उनको कंप्लेन लेटर दे रहे हो तो एफआईआर तो उनको फाइल करनी ही करनी है। अगर उनको केस में कोई बेसिस नहीं मिलता है तो वो एक एफआर लगा सकते हैं, वो उनका अधिकार है। एफआर का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट। जिन केसेस में बेसलेस रिपोर्ट करा रखी है आपने, कोई पर्सनल रंजिश निकालने के लिए किसी से झूठी रिपोर्ट आपने लिखा दी है, उस केस में पुलिस एफआर फाइल करती है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट। और जिस केस में उनको सब्सटेंस मिलता है, एविडेंसेस हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन में उनको लगता है कि हाँ ये जो हुआ है ये ऐसा ऐसा हुआ था, उस केस में चार्जशीट लगती है। चार्जशीट के बाद कोर्ट में केस जाता है। तो आप ये उनको बताओ, आपको मालूम है, यू नो द लॉ, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। आप उनको बताओ सर अगर आपको लगता है, मैंने आपके सामने ये एविडेंसेस रख दिए, राइट, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के समय आपको लगता है कि इस केस में कोई सब्सटेंस नहीं है तो आप एफआईआर लगा देना। अगर आपको सब्सटेंस लगता है तो आप चार्जशीट लगा देना। द मोमेंट आप ये टर्मिनोलॉजीज यूज करने लगोगे ना, दे विल स्टॉप टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। वो आपके एफआईआर लिखेंगे और इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम्स जैसे कहते हैं कि कुछ भी करके वो एफआईआर, कोई इन्फ्लुएंशियल है, एमएलए है उस एरिया का, या पार्षद है, कोई ऐसा है जो पुलिस बिल्कुल उनके खिलाफ नहीं लिख रही है एफआईआर। वन ऑफ द थिंग्स इन इंडिया वी ऑल नो, मदर ऑफ एनिमल वेलफेयर मेनका मैम, आप उनको लिखिए, gandhim@nic.in। आप मेनका मैम को लिखिए, आप सारे डिटेल्स लिखिए, किसको कॉल करना है उसका नंबर लिखिए, केस का नंबर लिखिए, अपना कंप्लेंट लेटर भेज दीजिए, शी विल कॉल अप। लेट अस से दैट इज नॉट पॉसिबल और फॉर सम रीजन इट्स नॉट वर्किंग आउट, आप अप्रोच द सीनियर्स। इनफैक्ट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेनका मैम के पास हजारों आते हैं, तो पहले आप अपने एंड से कोशिश जरूर करो, बिल्कुल ना समझे तो आप करो। हर पुलिस वाले के ऊपर एक उसका सीनियर होता है। पहली चीज, आप एसएचओ से नीचे तो किसी से कभी बात करो ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ही इनसेंसिटिव लोग होते हैं, उनको ना लॉ पता होती है ना वो आपकी बात सुनेंगे। तो एसएचओ से नीचे नहीं, एसएचओ से आप स्टार्ट करो। एसएचओ मतलब जो थानाध्यक्ष होता है। एक चीज और, चौकी में एफआईआर फाइल नहीं होती है, थाने में एफआईआर फाइल होती है। ओके, सो देयर इज नो पॉइंट गिविंग योर कंप्लेंट लेटर इन अ चौकी। आपके एरिया में जो थाना लगता है वहां पर जाके थानाध्यक्ष से मिलके आप उनसे बात करके, जैसे मैंने बताया, आप टर्मिनोलॉजीज यूज करते हुए आप उनको कंप्लेंट लेटर दीजिए। और लेट्स से वो नहीं आपको अग्री कर रहे हैं, या आपने दिया, 1-2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, वो नहीं फाइल कर रहे हैं, एसएचओ से ऊपर एक सीनियर होता है जिसको आप सर्कल ऑफिसर बोल सकते हो, या अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम होते हैं, एसीपी हो गया, डीसीपी हो गया, है ना। उसके ऊपर फिर एक आपका एसपी होता है, फिर एक एसएसपी होता है। कहीं पे एसएसपी एंड डीआईजी आर द सेम, कहीं पे डीआईजी फर्क होता है, आईजी होता है, कमिश्नर होता है। हर लेवल के ऊपर एक ऑफिसर होता है। आप जिसके पास भी जाओ, वही कंप्लेंट लेटर की एक कॉपी लेके जाओ और एक कवर लेटर टू द एसएसपी, टू द एसपी, टू द सर्कल ऑफिसर, टू द व्हाटएवर, लिखित आप जरूर लेके जाओ। ये रिकॉर्ड है,
Okay, whatever is on paper, no matter what people believe, a lot of people believe differently, but whatever I have achieved is by keeping the paperwork very strong. Paperwork is record keeping, paperwork evidences are very important. Impossible cases में भी, like I said, very senior police officers के खिलाफ भी अगर आप कर रहे हो FIR और अगर आपने paperwork strong रखा है, nobody can deny. अल्टीमेटली कोर्ट में जब आप जाओगे और आपके पास ये सारे पेपर्स होंगे कि मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर भी नहीं फाइल हुआ, you see how magic happens. Okay, so ऊपर जाते जाओगे, आप एक नोट कर सकते हो, आप एक सेक्शन 154 ब्रैकेट में 3, let me see if I can 154 क्या ये स्ट्रेट दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है? ओके, ऐसे दिख रहा है, आई डोंट नो. ओके, सो ऐसे लिखते हैं 154 154(3), राइट? ये रेड विथ सेक्शन 190, ये CRPC का. इसमें आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो. जब आप सारे सीनियर्स के पास चले गए, जो कि इम्पॉसिबल है कि वहां से ना हो, बट अगर फिर भी नहीं होता है तो आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाते हो, एंड 154(3) read with 190 of CRPC. CRPC is criminal procedure code. ये पूरे इंडिया पे लागू होता है. ये under this section the judicial magistrate will order the police to file your FIR and conduct the investigation. तो under any circumstances आपकी FIR फाइल ना हो, ये असंभव है. I'll also tell you, एक प्लीज नोट कर लो, दिस इज ब्रह्मास्त्र है ये. ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल जजमेंट है. कोई पुलिस ऑफिसर किसी की FIR फाइल करने से मना नहीं कर सकता है. He cannot deny you an FIR. ओके, एम्बिग्युअस केस आप दे ही नहीं रहे हो, आप तो एविडेंसेस भी दे रहे हो, एग्जैक्ट्स भी दे रहे हो, राइट? आपकी FIR फाइल करनी पड़ेगी. अगर कोई नहीं फाइल करता है तो द पुलिस ऑफिसर कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर अप टू 1 year, 2 years, अगर आपने हाई कोर्ट में पिटिशन करा उस पुलिस पर्सनल के खिलाफ. सो जहां आप ये केस मेंशन करते हो ना कि सर एज पर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, माय FIR कैन नॉट बी डिनाइड सर. आपको अगर सब्सटेंस नहीं मिलता तो आप इसमें FIR लगा देना, बट आप मुझे FIR तो नहीं डिनाई कर सकते ना सर. पोलाइट रहिए. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वॉलंटियर्स बहुत हॉस्टाइल हो जाते हैं, बहुत उल्टा सीधा बात करते हैं. दैट्स नॉट द वे आउट. Right? You don't fight with your doctor who's going to operate you, but know your rights, know the laws, right? Then another thing, cognizable and non-cognizable offenses. दो तरह के offenses होते हैं, एक cognizable होता है, एक non-cognizable होता है. Non-cognizable होते हैं, जब आप पढ़ोगे तो PCA Act is non-cognizable, but 428, 429 are cognizable offenses. IPC 428, 429, we'll come to it. ये cognizable offense है. मतलब cognizable offense में उनको FIR करनी ही करनी है. अब जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे किसी ने फ्रॉड कर दिया, फोर्जरी मतलब इस टाइप के जो ऑफेंसेस होते हैं, ये नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, ये सिविल कोर्ट में जाते हैं. जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं ये पुलिस को FIR फाइल करनी पड़ती है इसके लिए. ओके, इसके अलावा एक चीज है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल. मैंने ये बहुत सोशल मीडिया पे ये सुना है, लोगों को बहुत डिसहार्टेंड होते देखा है कि क्या फायदा इतना मेहनत करके, ये तो छूट ही जाने हैं, ये पैसा खिलाते हैं और छूट जाते हैं.
नो, बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। बेल मिलनी ही मिलनी है। आप चाहे इंसान का खून करो, चाहे आप मल्टीपल इंसानों का खून करो, सीरियल किलर बन जाओ, चाहे आप रेप कर दो किसी का, स्ट्रॉन्गेस्ट लॉज हैं इनके खिलाफ, लेकिन बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। जेल तभी मिलेगी जब कोर्ट वर्डिक्ट दे देगा, तब मिलेगी, वरना मीडिया ट्रायल में कुछ दिन रख लिया जेल में प्रेशर में, वही गलत चीज है। बट बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। नाउ अगर बेल इज अ मैटर ऑफ राइट, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल? अ लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक कि इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस आप बना दीजिए, ये तो बेलेबल ऑफेंस है। आईपीसी 428 429 बेलेबल ऑफेंस है। तो दोनों में फर्क क्या है? बेलेबल ऑफेंस में आपको थाने से बेल मिल जाएगी until and unless you oppose it। नॉन बेलेबल में कोर्ट से मिल जाएगी। इतना सा फर्क है बस, बेल तो मिलनी ही मिलनी है। सो प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड कि हमने इतनी लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई करी, फिर हमने उसको अरेस्ट कराया और उसको तुरंत बेल मिल गई। बिकॉज इफ इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, उसे थाने से बेल मिल जाएगी। उसको भी रोकने के तरीके हैं, आप लॉयर के टच में आओ, आप उसको पहले से अपोज करो। उसके और भी तरीके हैं कि आप ये बेल ना देने के कुछ कुछ ग्राउंड्स होते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये दोबारा करेगा इस तरह के, या हम कुछ ऐसे और उसमें सेक्शंस ऐड करते हैं जो नॉन बेलेबल हो, है ना, जिससे कि वो कोर्ट में जाए और आपको अपनी बात रखने का मौका मिले। सो don't get disheartened. Now we'll come to another very common confusion. IPC 428 and 429. Jay, if we could have the IPC 428 and 429 on the screen. Sure, just a moment. Should I share? No, I've got it. Just a second. And there we go. Okay. So, a lot of times मैंने देखा है कि लोग 428 और 429 दोनों को लिख देते हैं FIR में, और पुलिस लगा भी देती है, क्योंकि पुलिस को वैसे भी नहीं पता होता है कुछ भी, सारी लॉज उनको बतानी पड़ती है। 428 एंड 429 में अगर आप पढ़ के देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा 428 है एग्जैक्टली सेम ऑफेंस, वही है। Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming, or rendering useless any animals or animal of the value of 10 rupees or upwards shall be punished with imprisonment. इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? Whoever commits mischief by, आप राइट साइड पे देखो, इसमें भी वही सेम 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 चीजें लिखी हैं। डिफरेंस है केवल वैल्यू का, राइट? यहाँ 10 रुपए अप टू 50 रुपए, और यहाँ 50 रुपए एंड अपवर्ड्स, ठीक है। पर मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि इसमें पनिशमेंट 2 साल तक का है, और 429 में 5 साल तक का है। सो नेचुरली हम कौन सा लगाना चाहेंगे? ज्यादा सीरियस कौन सा बन जाता है? 429। नाउ 429 में एक कंफ्यूजन आता है, जो कि बहुत ऑफन हम लोगों ने पुलिस को ये कंफ्यूजन रेज करते हुए सुना है। वो ये है कि पुलिस ये कहती है कि भाई इसमें तो ये एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, म्यूल, बफलो, बुल, काउ, ऑक्स ये लिखा है। अब ये तो कुत्ता है आपका, कुत्ता कुत्ता तो इसमें मेंशन नहीं है, नहीं लगा सकते। नो, आप इसके आगे पढ़ो। इसके आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है कि whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming, or rendering useless any animal, blah 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 blah, whatever may be the value thereof, और ये ऑफ लिखा हुआ है, ये गलत प्रिंटेड है, और एनी अदर एनिमल, राइट? सो उन्होंने मेंशन किया है ये एनिमल्स, या
अन्य कोई भी एनिमल, आप इसको आईपीसी 429, आईपीसी 428 को आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो इसमें आप उनको ये वाली लाइन पढ़ाओ, और एनी अदर एनिमल। अब बात आके रुकती कहाँ है? 50 रुपीज पे। अब स्ट्रीट एनिमल या कम्युनिटी एनिमल या जो कुत्ते होते हैं, निराश्रित कुत्ते होते हैं, ये 50 रुपए की इनकी वैल्यू है, ये आप कैसे उनको कन्विंस करोगे? सो द आर्ग्यूमेंट दैट वी यूज is that कि government has allocated a minimum of 445, central government has allocated a minimum value of 445 rupees जो Animal Welfare Board of India इनके स्टेरिलाइजेशन के लिए देता है, राइट? तो चूंकि ये बाजार में तो बिकते नहीं है, तो जितना आपने इस पे इन्वेस्ट गवर्नमेंट कर रही है, तो मिनिमम वैल्यू तो उतनी हुई ना, राइट? सो जब हम ये देते हैं आर्ग्यूमेंट, तो आज तक ये हर जगह एक्सेप्ट हुआ है। सो आप भी ये दे सकते हो कि ये तो मिनिमम 445 तो है ही, बिकॉज उतना तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो मतलब 1000 रुपीज तो है ही ना। 445 रुपीज AWPI देती है, और लगभग उतना स्टेट गवर्नमेंट देती है, एलोकेट करके रखा हुआ है, राइट? सो दैट इज हाउ यू यूज 429। दूसरा चीज, आप कभी 428 और 429 को एक साथ मत यूज करो, ये आइदर और है, या तो इस वैल्यू के कम का होगा जानवर, या तो इस वैल्यू के ज्यादा होगा। कम भी है और ज्यादा भी है, ये तो नहीं हो सकता ना। सो यूज ओनली 429। आप अगर पुलिस को ऑप्शन दोगे तो वो हमेशा 428 लगाएंगे रादर देन 429। सो आप मेंशन ही केवल 429 करो जब आप अपना कंप्लेंट लेटर दे रहे हो कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ आईपीसी सेक्शन 429 एंड सेक्शन 11 PCA एक्ट this, right? So as I said, IPC 429 is cognizable offense, यानी कि इसकी FIR होनी है। PCA Act is non-cognizable, so that is why PCA Act के जब भी आप करो तो इसको किसी ना किसी और सेक्शन के साथ आप क्लब जरूर कर दो, right? So this is about, moreover, the basic laws that we wanted to cover, the very, very basic laws. Now certain questions that we got, उसको भी हम थोड़ा सा address कर लेते हैं यहाँ पे कि अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, कहीं आपको कोई धमकी दे रहा है, कहीं पे आपको फीडर हैं आप और आपको कोई खिलाने नहीं दे रहा है, and all of this happens. So we'll share some of the clips कि आप उसमें क्या यूज कर सकते हैं, बट आप इससे पहले कि मैं इसको डिटेल में बताऊं, आप ब्रीफ में नोट डाउन कर लो ये the धारास that we can use along with PCA Act सेक्शन 11, जो कि क्रूल्टी का सब कुछ उसके अंदर कवर हो जाता है। बिसाइड्स दैट IPC 429 जो हमने अभी डिस्कस किया, विच इज किलिंग, पॉइजनिंग, मेमिंग मतलब अंग भंग, हाँ, या रेंडरिंग यूजलेस, अपाहिज बना देना, राइट? तो इवन अगर हड्डी टूट गई है तो हड्डी एक अंग होता है, और हड्डी टूटने से भी 429 लग जाता है। Sorry to interrupt you, Kamna, but if we could wrap it up in 10 minutes. Yeah. Okay. So we are just noting down जो धाराएं हैं। IPC 503, if whoever is interested, please note it down. IPC 503 ये इंटिमिडेशन है, आपको धमकी देना, कुछ भी तरह की धमकी अगर आपको दे रहा है, आपको भयभीत कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, वो आप किसी से बात भी करने जाओ तो वो आपको कुछ ना कुछ धमकी देता है, आप IPC 503 in almost 99.9% of the cases आप लगा सकते हो। IPC 503 that is intimidation. IPC 504 अगर वो आपसे बुरे से बात कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, दैट इज IPC 504. IPC 506 ये है जान की धमकी। अगर वो आपसे कह रहा है कि इसका नतीजा तुम देखोगे, बाद में देख लूंगा,
या मैं तुम्हें मार डालूंगा, या जो हाल इस कुत्ते का किया है वो हाल तुम्हारा करूंगा, ऑल ऑफ दिस जान की धमकी। IPC 506, इट्स अ वेरी सीरियस सेक्शन। IPC 506, 447, लोग आपके घर आके झगड़ा करते हैं, आप कुत्तों को खिलाते हैं, इस टाइप की सिचुएशंस में IPC 447 ये ट्रेसपासिंग का लॉ है। आपके प्राइवेट एरिया में कोई नहीं आ सकता, आपको धमका नहीं सकता, दैट इज ट्रेसपासिंग एंड इट्स सीरियस लॉ। हाँ, अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो फीमेल्स होते हैं, एंड कभी कभी लोग सिर्फ फीमेल्स हैं इस वजह से झगड़े उठा लेते हैं, सो दैट दे कैन जनरली यू नो टेक एडवांटेज ऑफ देम, एंड मारपीट कर लेते हैं, लॉट ऑफ टाइम्स यू नो कपड़े फाड़ देते हैं, होल लॉट ऑफ काफी काफी वायलेंस रिपोर्ट होता है फीमेल वॉलंटियर्स के साथ। सो यू मस्ट नो 354 is assault to outrage modesty. Okay, this is assault to outrage modesty. 354B, अगर आपका कुछ कपड़ा फाड़ दिया है या कुछ लड़ाई झगड़े में अगर किया है तो दैट इज आपका 354B लगेगा। अगर आप जब भी खाना खिलाने जाते हो तो ये जो शोहदे होते हैं जो ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, कुछ कमेंट्स पास कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपको जनरली भी तंग कर रहे हैं, 509 IPC 509, this is for eve teasing, passing comments, gesturing, all of that. ठीक है, also note down, like I said, जो एक्सीडेंट्स होते हैं रोड के, इसमें आप क्या कर सकते हो, वेरी फ्यू पीपल नो दिस, प्लीज नोट इट डाउन एंड हेल्प एंड गाइड अदर्स ऑल्सो। मोटर व्हीकल्स एक्ट में सेक्शन 184 है, ओके, मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, सेक्शन 184 इज ड्राइविंग डेंजरसली। Section 279 is rash driving. Section 337 is causing hurt or endangering life or personal safety of another person. Now यहाँ पे human mentioned है, but when we use these sections we always argue with the police. जब वो section लगाने में मना कर रही होती है, we always say that the person endangered life of people. अगर वो इतना रैश, इतनी तेज चला रहा था कि वो कुत्ते के सामने आने पर गाड़ी रोक नहीं पाया, तो क्या अगर वहां पे बच्चा आता, कोई बेगर आता, तो क्या वो रोक लेता? मतलब इंटेंशनली तो नहीं चढ़ाई ना, वो गाड़ी उसके कंट्रोल के बाहर थी। So you have to form your own, come up with your own arguments, and I'm sure you guys will come up with lovely arguments. And make sure that FIR आप definitely करो. Okay, Jay, how much time do we have? Can we take the third question? How individuals can get active in the community to drive change? Can we take that? Yes, sure. Okay. So just for reference, there's about 5 minutes left in the talk. Okay, so I'll quickly wrap it up. Sure. So आपकी सिटी में अगर बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है एनिमल वेलफेयर, बट यू स्टिल वांट टू डू अ लॉट, सो गोइंग बाय आवर ओन एक्सपीरियंस, जहां हमने स्टार्ट किया था विद 0 वॉलंटियर्स, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड we have some beautiful volunteers working with us. How we do that? पहले तो आप WhatsApp ग्रुप फॉर्म करो, भले उसमें आप एक और आदमी को ऐड करो, बट एक WhatsApp ग्रुप फॉर्म करो, ठीक है? हाउ टू इंक्रीज नंबर ऑफ वॉलंटियर्स? आप ये वेट्स के यहाँ पे, मेडिकल शॉप्स जहाँ पर डॉग्स के मेडिसिन मिलते हैं, यहाँ पर आप हैंड रिटन या प्रिंट आउट निकाल के आप लिख दो कि इफ यू सी एनिमल क्रूल्टी या एनी डॉग और एनिमल इन नीड, इस नंबर पे कॉल करो। ओके, आपको बहुत सारे यूजलेस कॉल्स भी आएंगे, फिल्टर आउट करो। The possibility of getting good volunteers comes from here. मैंने खुद का नंबर मैंने डाला था एंड बहुत सारे कॉल्स आते थे, लेकिन वहां ही से हमें बहुत सारे वॉलंटियर्स मिले हैं who do beautiful work today.
Okay, because these are the people whoever will call you up कि आज यहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया है, now that person is a potential volunteer because उसे खराब लगा है. आप उसको इमीडिएटली व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लो. उसके एरिया के पास में जब भी कुछ होगा आप उसको अप्रोच करो, कॉल करो, गेट इन टच. जो जो आपको मिलता जाए, जो पोटेंशियल आपको फिल्टर आउट करने के बाद मिले, आप उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करते जाओ. देन देयर इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल दैट यू कैन डू वंस. थोड़े से अगर 5-10 भी आपके पास वॉलंटियर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप एक सैनिटाइजेशन ड्राइव इज समथिंग दैट वी हैव कम अप विद. बस नाम दिया हुआ है सैनिटाइजेशन ड्राइव. इसमें हम क्या करते हैं, आप पुलिस के पास जब भी जाओगे और आप काम लेके जाओगे, पुलिस का एटीट्यूड फर्क होता है. आप बिना किसी काम के अपने पुलिस थाने में जाओ, एक एरिया चूज कर लो. लेट अस से आपका एक वॉलंटियर निराला नगर का है, आप निराला नगर थाने में जाओ, उस वॉलंटियर के साथ 4-5 लोग मिलके, 2-3 लोग जो भी मिलते हैं, एक मिठाई का डब्बा लेके जाओ. आप वहां के थाना अध्यक्ष से मिलो, आप उनको बताओ सर हम लोग ये निराश्रित जानवरों के लिए काम करते हैं और आपसे मदद चाहते हैं, थोड़ा आपका सपोर्ट हो जाएगा. बहुत सारे लोग क्रूल्टी करते हैं, blah blah blah. Up nice sweet talk because you're not going there with the work. It makes lot of difference. जो आप फायर फाइटिंग वाला एक्शन लोगे ना, एफआईआर फाइल करने वाला, वो प्रिवेंटिव नहीं है, लेकिन जो आप लल पीरियड में करोगे वो प्रिवेंटिव एक्शन है. सो आप पुलिस के पास जाओगे, टेक हिज नंबर, गिव द नंबर ऑफ द वॉलंटियर. ट्रस्ट मी, दिस गाय इज गोइंग टू बी एन एसेट. He is going to, they are craving appreciation, they are craving someone appreciating them for nothing. So आप प्लीज जाओ, बिना किसी काम के आप उनको एक मिठाई का डब्बा देके आओ, और कभी कभी फोन करके ऐसे ही जनरली सर हाउ आर यू, 20 सेकेंड 30 सेकेंड की बात करो. यू विल बाय दिस पर्सन. ओके. सिमिलरली आप वहां के वेट से जाओ, वेट से जाके आप वहां पे वेट से मिलो कि सर हम लोग ये करते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या आप अपने पैरावेट को भेज सकते हो, क्या आपके यहाँ ला सकते हैं, क्या आप उसको एडमिट कर सकते हो, या क्या कर सकते हैं. डिस्कस द पॉसिबिलिटी, राइट. RWAs वहां जो होती हैं, आप वहां पर लॉ के पोस्टर, जय प्लीज शेयर द लॉ का पोस्टर. सो ये लॉ के पोस्टर आप वहाँ RWA के सेक्रेटरी या उनके पास जाओ, क्योंकि कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है तो वो डिफेंसिव नहीं होंगे. आप उनको बताओ सर ये लॉ है कंट्री में, ये अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दीज लॉज, तो अगर आप इसको बोर्ड में लगा देंगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा. एंड थोड़ी सी, ऑलवेज अप्रिसिएशन इज ऑलवेज बेटर देन क्रिटिसिज्म. सो अप्रिशिएट करके अच्छे से बात करो, एंड a lot of good work will be done. So ये मैंने ही बनाया है, मैंने ही इसको वर्ड किया है. टेक्निकली करेक्ट है. Technically, a lot of people have added a lot of thing to this. I will not say कि that is technically correct, but this as per law is technically correct. किसी भी जानवर को पत्थर लात डंडे से मारना पीटना, उसे उसकी जगह से हटाना भगाना, ऐसा कोई भी काम करना जिससे उसे कष्ट या पीड़ा पहुंचे, प्रताड़ित करना अथवा जान से मारना, पीसी एक्ट 1960 सेक्शन 11 एवं आईपीसी 429 के तहत एक दंडनीय अपराध है. ऐसा करने पर आपको 5 वर्ष का कारावास हो सकता है. ओके, एवरी वर्ड इज केयरफुली पुट इट. सो अगर आपको करना है, आप एग्जैक्टली ये करके ले जाके आप पुलिस स्टेशन में भी उनसे कह सकते हो कि आप सर इसको लगा दो. आप अगर देखोगे तो एक अभी जय शेयर करेंगे, ये पुलिस के द्वारा उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मिलके आई थिंक कई सारी जगह पे पुलिस से थ्रू उन्होंने ये उनके रेड एंड ब्लू पे करके उन्होंने इसको प्रिंट आउट मतलब बोर्ड पे लगवाया है, विच इज वेरी गुड. ओके. सिमिलरली जय, इफ यू गेट द पुलिस वाला रेड एंड ब्लू में हाफ एन आप उसको शेयर कर देना. सो सिमिलरली आप वहाँ के टेम्पल्स एंड मॉस्क में जाओ, उनसे भी लल पीरियड है, कोई कंप्लेन लेके आप नहीं जा रहे हो. सी एग्जैक्टली इसमें नीचे वाला जो सेक्शन है ना, वो टेक्निकली उतना करेक्ट नहीं है, बट जितना सेक्शन जितना मैंने पहले शेयर किया था, आप वो पुलिस से डेफिनेटली करवा सकते हो. ठीक है. देन सो इसका आप इंग्लिश वाला भी शेयर कर देना.
देन आप वहाँ के गुरुद्वारा, टेम्पल, मॉस्क, इन पे भी जाओ। वहां पर भी एक काइंडनेस का कोई पोस्टर या कुछ लिखवा लो, उनसे कह दो प्लास्टिक मत शेयर करो। दीज आर ऑल पीपल हु होल्ड इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट टाइम किसी का, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल कोई कोई ऐसा केस आता है जिसमें कोई अक्यूज जो है वो मुस्लिम है, ओके। नाउ द मौलवी जिससे आप पहले मिल चुके हो, अगर वो सिर्फ कह भर देगा तो बहुत इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेगा, राइट और आपका कुछ भी नहीं गया क्योंकि आप पहले उनसे मिल चुके हो। देन बी इन टच। एक बार मिठाई का डब्बा ले जाके आप एसपी से, एसएसपी से, कमिश्नर से, जब आपको टाइम मिले इनसे टच में रहो। डीएफओ से जरूर मिलो, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वाइल्ड लाइफ केसेस होते हैं, जैसे आपको पैरट्स दिखते हैं, इंडियन पैरट्स, इंडियन बर्ड्स दिखते हैं, मंकीज के केसेस होते हैं, लंगूर लोग बांध के रखते हैं मंकी भगाने के लिए। ये सब वाइल्ड लाइफ में आता है, ये आपका म्यूनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकता इसमें, ये वाइल्ड लाइफ के होता है। तो डीएफओ से जरूर मिलो। कभी बंदर घायल हो गया या कुछ ऐसा हुआ तो आप डीएफओ से टच में रहोगे, ही विल हेल्प यू आउट। Sorry, snakes charmers. yeah, just if you could Yeah, wrap it we're up in a minute. we're just ending. Okay, so snake charmers भी होते हैं। Okay, now जब आप अपना नंबर दे दोगे, राइट तो बहुत सारे कॉल्स आएंगे, आप इतने सारे कॉल्स को कैसे अटेंड करोगे? आप पैरावेट्स, जब आप वेट्स से मिलने लगोगे ना, आप वहां वेट के पास एक पैरावेट होता है जो कंपाउंडर, इक्विवेलेंट टू कंपाउंडर जो ह्यूमन डॉक्टर्स का होता है, वो पैरावेट से आप उसका नंबर लो। पैरावेट्स आपको और पैरावेट्स के नंबर्स देंगे। आप इनसे बात करो कि जब कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है ऑन स्पॉट आप जाके उसका ट्रीटमेंट कर दो, हम आपको पर विजिट पे करेंगे। आप अगर उनको 150, 200, मैक्सिमम 250 रुपए दोगे ना, दिल हैप्पीली डू इट अलोंग विद मेडिसिन। ड्रिप विप भी चढ़ा देंगे, सब कर देंगे। नाउ अब आपको दिन के अगर 5 कॉल्स आते हैं तो आप 250 रुपए 5 बार पे करोगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। सो इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब आपको कॉल्स आने लगेंगी ज्यादा तो आप उनसे ही रिक्वेस्ट करो कि सर अगर आप पे कर सकते हो, इट्स जस्ट अ नॉमिनल अमाउंट, 200-250 रुपए का अमाउंट होगा, अनटिल एंड अनलेस कि वो कोई रिक्शा वाला हो या कोई छोटा सा बच्चा हो, स्टूडेंट हो जिसके पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो तब आप कर सकते हो। वरना 99% ऑफ द टाइम्स पीपल आर रेडी टू पे, बिकॉज वो तो एक्सीडेंट का केस आपको 6 महीने में एक बार या साल में एक बार बताने वाले, किसी कोई नहीं माइंड करता है। आप पोलाइटली बात करोगे, दे विल पे फॉर इट। लाइक दिस यू कैन हैंडल n नंबर ऑफ कॉल्स। अगर आप पैरावेट का एक नेटवर्क बना लेते हो तो आप एक्सीडेंट कॉल्स जितनों की हैंडल करते जाओगे, ट्रस्ट मी यू विल कीप बिल्डिंग योर नेटवर्क। सो विद दैट वी रैप अप आवर बेसिक webinar on basic animal welfare. Now I hope I'd like to thank, sorry to interrupt you. I'd like to thank you so much for, I know it's a 4:30, you started in the UK, so I'd like to thank you so much for taking the time today and coming to teach us and share your experience and knowledge. Everybody that's interested, we could have if you have any questions, I have several of the ones you submitted on the registration forms. Otherwise, if there's any impulsive questions, or ones that came up during the talk, we'd be happy to have a Q&A period for 15 minutes or so. I think Nikita had a question in the chat, Kamna. या विलेज में जो क्रूल्टी होती है उसके लिए क्या कर सकते हैं? वहां तो कोई नहीं मानता, सबसे ज्यादा क्रूल्टी होती है और मोस्ट ऑफ द पीपल को पता भी नहीं चलता। लाइक आई सेड, टेकिंग लीगल एक्शन is the answer to all of this. आप वहां कितनी भी छोटी विलेज होगी, आपके वहां पर एक लीगल स्ट्रक्चर होता है, पुलिस का सिस्टम होता है, वहां पर भी वही सेम चीज है। लोअर लेवल पे नहीं समझ में आता है तो आप सीनियर लेवल पे पुलिस को अप्रोच करो। लेकिन लोगों को पता तभी चलता है जब आप पुलिस एक्शन लेते हो, तभी विलेज वाले भी समझेंगे।
अवेयरनेस भी उससे आती है, क्योंकि जब आप एक्शन लेते हो तो चर्चा शुरू होती है। हाँ, एक चीज और कि अगर संभव हो सके तो मीडिया से भी इन टच रहिए, वो भी लल पीरियड वाला काम है। आप वो भी, जब कोई केस नहीं हुआ है आप जाके मिले, आपको उसमें भी एक किसी भी मीडिया हाउस में आपको कोई ना कोई सिंपैथेटिक एनिमल वेलफेयर वाला जरूर मिलेगा। आप उसको पकड़ लीजिए, नंबर ले लीजिए, और जब भी आप एक्शन लेते हैं एनिमल क्रूल्टी पर, प्लीज उसको मीडिया में पब्लिश कराइए। तो बहुत सारे लाखों लोग पढ़ते हैं और तब उनको तब पता चलता है कि अच्छा, इस पे एफआईआर भी होती है। सो दैट डज द जॉब। दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट, बी इट रूरल हो, अर्बन हो, विलेज हो, कहीं भी हो। दिस इज द वे टू गो अबाउट इट। ओके, people expect NGOs to do all these work even if they are prime witness. Usually NGOs are involved in animal rescues. What should be done in such cases? Okay, ye true. I am always, I'm furious with the people जो ये कहते हैं कि अगर FIR भी हम फाइल करेंगे तो आप क्या करोगे? It's very annoying. It's very annoying. बट आप पहले तो कोशिश करो उनको कन्विंस करने की। ओके, अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं और अगर आपको बहुत जिटरी लगते हैं तो ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत फोर्स करके उनसे एफआईआर फाइल करवा भी दोगे ना तो वो वापस ले लेंगे एफआईआर। इन सच केसेस, जैसा मैंने कहा कि आप उनको विटनेस बना लो, उनका स्टेटमेंट ले लो, आप उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट ले लो या रिटन स्टेटमेंट पे साइन ले लो, एफआईआर आप खुद फाइल कर लो। बिकॉज इन केस ऑफ स्ट्रीट एनिमल्स, इन केस ऑफ मतलब एज अ सिटीजन, लोकस स्टैंडाई की बात आती है कि आप कैसे कर सकते हो, बट एनिमल वेलफेयर में, बिकॉज जानवर म्यूट क्रीचर है, जो वो मतलब बेजुबान जानवर है, वो अपने राइट खुद नहीं जाके कोर्ट को कर सकता है, तो आप उसके बिहाफ पे हमेशा फाइल कर सकते हो। इट्स एन एक्स्ट्रा वर्क, बट मुझे लगता है कम से कम आपको कोई इंटिमिडेट तो नहीं कर सकता आपसे एफआईआर वापस करवाने के लिए, आपको तो कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। सो दैट्स the brighter side of it as I see it. Okay, anything, any other questions that we have missed, Chair? No questions in the chat so far. If nobody else has any questions, I have several of the questions you all submitted in the registration form. Perhaps we could use the remaining Before time. that, Jay, Yes. there are some very common questions. If I can share the screen, Yes, absolutely. Okay. So there are certain things that I would like to share, जो common as volunteers आपको आएगा। ये एक AWBI का सर्कुलर है जो आप रख सकते हो स्ट्रीट डॉग्स एंड पेट डॉग्स के रिलेशन में। इसमें आप लिफ्ट में बैन कर देना, पार्क में ना ले जाने देना से आप देखोगे, अगर आपको दिख रहा है यूज ऑफ लिफ्ट बाय पेट्स, रेजिडेंट्स को खाना ना खिलाने देना, पार्क में ना ले जाने देना, वो कहते हैं कि आप अपने कुत्ते को लेके निकलो तो मजल लगा के निकलो, आप नहीं वो कर सकते हो। इवन ओनर्स अपने घर में बांध के नहीं रख सकते हैं। सो बहुत सारी चीजें जब आप इसको देखोगे, एंड जो लोग ईमेल आईडीज दे रहे हैं उनको हम ये अटैचमेंट्स भी भेज देंगे। सो ये इसमें डूज एंड डोंट्स लिखे हैं। आप क्या नहीं कर सकते, यू कांट बीट, यू कांट डिसलोकेट और रीलोकेट स्ट्रीट डॉग्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है। अनदर थिंग, पागल कुत्ता, rabid डॉग, nobody can say that a dog is rabid जब तक कि उसकी ब्रेन की टेस्टिंग नहीं होती, तब तक नहीं कोई भी कह सकता, इवन वेट नहीं कह सकता है। सो डू नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस ऑफ रैबिड डॉग। एंड रैबिड डॉग, इन सस्पेक्टेड रैबिड डॉग के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियरली लिखा है कि नोटिफिकेशन 929 of animal birth control rules dogs में
क्लियरली लिखा है कि क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना है। डॉक्टर आएगा, इंस्पेक्ट करेगा, एक एनजीओ का डॉक्टर होगा, म्यूनिसिपैलिटी का डॉक्टर होगा, फिर वो उसको लेके जाएंगे। अगर उनको लगता है कि हाँ ये सस्पेक्टेड रैबिट डॉग है, तो वो उसको पकड़ के लेके जाएंगे और ले जाके उसको किसी एनजीओ में उसको आइसोलेशन में रखा जाएगा। कहीं भी उसको मार डालने का कोई प्रावधान नहीं है, नेवर। उसको आइसोलेशन में रखा है और लॉ Kamna, I think your internet cut out. मतलब रिकॉर्ड कर लो So I recorded the entire webinar. the is recorded. entire one, but अगर इसमें just in case कोई important point निकला तो we can edit it and add it in that. Perfect. So any questions? Anybody? So if there's no questions, then I'd like to ask some of the questions that were posed in the registration forms. And one question was that I found interesting was particularly how do we deal with aggressive dogs? I mean, if a dog is injured, they're vulnerable and they're naturally not going to be, they're going to be scared. So they might tend to display some aggressive behavior. So how would we understand their behavior, their feelings, and how would we understand how to deal with them if they're aggressive? Okay, so I need to understand because it's a very बहुत वास्ट सा ही क्वेश्चन है। किस टाइप के केस को वी आर लुकिंग एट? इज इट एन इंजर्ड डॉग जिसको वी वांट टू डू ट्रीटमेंट फॉर दैट डॉग, और इज इट एन अग्रेसिव डॉग हु इज चेजिंग व्हीकल्स, or is it an aggressive dog who is accused of biting? Or Rashmi, your dog is so distracting. So cute he is. Yeah, so what kind Sure. kind of aggressive dog are we looking at? I think in this case, the individual probably meant in the context of a rescue. They're trying to do an on-site rescue. They've been reported. They've been told that there's an injured dog that's been reported, Okay. and they want to go provide some minor first aid on-site treatment. But the dog is naturally aggressive because he's wounded. So how would the rescuer deal with such a situation? Okay. Now, unfortunately मेरे अभी पर्स में नहीं है, वरना I always have this. जो जाली वाली पट्टी होती है ना, जो चोट लग जाने पे हम बांधते हैं, वो जाली जाली करके वो पट्टी होती है ना जो चोट पे बांधते हैं, थोड़ी सी वो पट्टी हमेशा आप अपने साथ रखो. ओके, नाउ लेट मी सी हाउ कैन आई okay, I'll just try to tell you with this. हाँ, आपका वो जाली वाला पट्टी है, उसको आप ऐसे, दिख रहा है ना? जेट कीप टेलिंग मी अगर नहीं दिख रहा है. सो ऐसे आप डबल कर लो. ये आपका पट्टी है, आप उसको डबल कर लो, ठीक है? और ये लूप बन जाएगा ऐसे, इसके बीच में से आप ऐसे निकाल लो, राइट? सो ये एक ऐसा लूप बन गया. कैन यू सी? Yes. राइट. नाउ दिस, ये आप थोड़ा सा बड़ा सा ये करके, लेट अस से दिस इज द माउथ ऑफ द डॉग. ओके, सो आप इसको, आपको छू नहीं रहे हो क्योंकि ये पट्टी लंबी है, राइट? और ये माउथ है, आप इसको पास में ले जाके एंड यू जस्ट पुल इट. ओके, सो आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन मैं क्या कहने चाह रही हूँ. आई हैव पोस्टेड इट ऑल्सो, बट दिस इज हाउ द माउथ. एंड बिकॉज वो जाली वाली पट्टी है, वो बिल्कुल नुकसान नहीं करती है, वो उनको बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाती है. सो वंस दिस इज माउथ इज लॉक्ड, आप इसको घुमा सकते हो एंड इसमें ये कर दोगे. अभी उसका माउथ बंद हो गया अगर, तो वो शेर चीता नहीं है, वो आपको अपने नाखूनों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता.
ओके, अनदर थिंग, जब आप रेस्क्यू के लिए उठा रहे हो डॉग को, स्पेशली अगर स्पाइनल कॉर्ड या किसी चीज में उसको चोट लगी हुई है, तो एक कार्डबोर्ड या कोई भी पीस को ना उसके नीचे स्लाइड कर दो एंड उसके साथ आप उठाओ, सो दैट हम समटाइम्स उठाते हैं उनके भले के लिए, बट उनकी इंजरी फर्दर एग्रेवेट हो जाती है। ऑल्सो चादर, आप किसी भी कहीं भी आप होगे, हल्दी इज वन थिंग यू कैन ऑलवेज टेक। इट्स अ नेचुरल, मतलब उसका पेन एकदम से, वो अगर बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, हल्दी अरेस्ट करता है ब्लीडिंग की। ओके, एंड प्लस पेन भी खींचता है। आप किसी भी घर में, 4 घर में अगर आप बेल बजा के बोलोगे ना कि कुत्ते को बहुत चोट लग गया है, प्लीज थोड़ा मुट्ठी भर हल्दी दे दो, या अगर कोई भी कपड़ा है, चादर है, कुछ भी है, वो दे दो, कोई ना कोई आपको जरूर दे देगा। 4 घर में से एक घर कोई दे देगा आपको। ओके, आप उसमें लपेट के उसको लेके जाओ। दीज आर ऑल थिंग्स जो आपको, वी आर नॉट, अनफॉर्चुनेटली हम लोग के पास उतने गैजेट्स और उतना हमारे पास लग्जरी नहीं है, तो जो है हमें उससे काम चलाना पड़ता है। एंड दीज आर अमेजिंग थिंग्स दैट वर्क। एक प्लीज, एक मेरी रिक्वेस्ट है टू एवरीबडी, प्लीज डू नॉट यूज आइवरमेक्टिन। हम लोग को जब नहीं मालूम था तब हम लोगों ने भी यूज किया था, बट आइवरमेक्टिन इज अ किलर। अब आइवरमेक्टिन के मोस्ट कंट्रीज में आइवरमेक्टिन इज बैंड। इंडिया में ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये डंप करते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी आइवरमेक्टिन चलता है। तो इट इज हेपेटोटॉक्सिक, बहुत डैमेज करता है वो लिवर को। तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन हो, मैं भी रखती हूँ एक आइवरमेक्टिन। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, आप हाईवे पे जा रहे हो, आपको पता है कि आप दोबारा कभी उस कुत्ते को नहीं देखने वाले हो, मैगट्स भरे हुए हैं उसके, आप एक आइवरमेक्टिन लिव 52 के साथ उसको दे दो एंड भगवान से प्रे करो कि भाई संभाले रखना। ओके, अदर देन दैट डोंट यूज आइवरमेक्टिन। मैगट्स के वर्स्ट केसेस में भी आप हीलोकाइंड आयुर्वेदिक स्प्रे है, और भी है स्प्रेज, टॉपिक्योर मत यूज करना। ये सब स्प्रेज बहुत स्टिंग करते हैं, वो डॉग भाग जाएगा और दोबारा जिंदगी में कभी आपके पकड़ में नहीं आएगा। हीलोकाइंड आयुर्वेदिक स्प्रे ठंडा ठंडा है, उसको बिल्कुल चोट नहीं करेगा। आप डालोगे, मैगट्स हम धीमे धीमे मर जाएंगे। 3 स्प्रेज 4 स्प्रेज आप 6 6 आवर्स के इंटरवल पे डालो, या एक दिन पे डालो, it'll be done and you'll save a life, and it's a very bad death with maggots. So that. Thank you so much. I think that that most certainly answered the question. I think one more question is how can individuals help to raise awareness against the situation in animal cruelty? Okay, so आप, आई थिंक ये क्वेश्चन आप अपने आप से करो कि आप क्या कर सकते हो। ओके, आप सोशल मीडिया पे बात कर सकते हो, मे बी आप पोस्ट बना नहीं सकते, बट आप पोस्ट शेयर कर सकते हो डेफिनेटली, राइट। आपके अगर कोई, लेट अस से आपके कोई चाचा काका मामा ताया कोई मीडिया में है, आप उनको कन्विंस करो कि आप कुछ लिखो। आपका कोई अगर पुलिस में है तो आप उनको कन्विंस करो। चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। अपने आसपास आप देखो कि आप क्या किसको कर सकते हो। अगर हम अपने घर वालों को, अपने आसपास वालों को नहीं कन्विंस कर सकते, तो हम दुनिया को क्या चेंज करेंगे। आई एम ऑल्सो नॉट सेइंग कि आपके सबको आप चेंज कर सकते हो, देर आर सम पीपल वो नहीं चेंज होंगे, बट आप कोशिश करते रहो। अनदर थिंग इज, आप अपने पास के स्कूल्स जो हैं उनको अप्रोच करो। आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। हमारी सिटी के सारे schools, आई मीन द वॉलंटियर्स हैव गॉन एंड देव गिवन प्रेजेंटेशंस। आपको प्रेजेंटेशंस भी पीपीटी मिल जाएंगे, बने बनाए मिल जाएंगे आपको, कोई ना कोई शेयर कर देगा आपके साथ। सिंपल सी चीजें आप लोगों को अपनी बिल्डिंग से आप शुरू कर सकते हो। जैसे मैंने किया है कि आप ब्लेड वगैरह एक एक बकेट रख दो कि जो कांच के टूटे बर्तन हैं या ब्लेड हैं या शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, आप केवल इसमें करो, और जब वो भर जाए बाल्टी, तो आप डिग करके उसको गाड़ दो, उसको डस्टबिन में मत डालो। आप बोलो कि आपके घर का जो भी खाना बचता है,
जो सुबह कूड़ा इकट्ठा करने वाला आता है, आप उसको महीने के 200 रुपए दे दो, कह दो भाई भैया ये एक बाल्टी है ना, जब आप कूड़ा इकट्ठा करने जाते हो तो साथ में ले लो, तो आपको खाना अलग से मिल जाएगा। सो दीज आर छोटा छोटा चीजें। ट्रस्ट मी, जब कोई भी इंसान इतना सा भी काम करता है ना, एक नेचुरल हमारे अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ बीइंग यूजफुल, a happy feeling आती है, and that is what you have to touch, and then you'll be kindling that emotion in people. Media is very important, police is very important, education system, schools are very important. कोई टीचर है तो आप उसको बोलो, there is one wonderful, beautiful, wonderful volunteer of ours, Caroline. She happens to be a school teacher, and you know how she beautifully includes animal welfare in everything she does. वो ऐसे भी लिखने को देगी, लेटर भी लिखने को देगी बच्चों को, तो you know the topics she will give, कि you have to write a letter to your friend convincing him to adopt an indie dog and not a pedigree dog. So then she'll have 50 letters of her class children convincing somebody. So they are writing nice things, painting देते हैं, तो वो kindness पे. So it's n number of ways you can do. Convince them to keep a bowl of water. Lovely response you will get with that. अपने आसपास देख आप खुद decide करो how you can contribute to animal welfare. And thank you. Thanks so much for that answer. And I think a last question before we call it a morning for over there and night over here. It's a very common attitude for people to think that when puppies or kittens that they have aren't working out, they could just put them in a bag or empty ground or somewhere on the roadside. What action could we take to prevent this? This ties in with the previous question where we talk about advocacy and initiatives we can take, but what specifically could we do on a situation like this? Okay, now I would divide this question in two parts. One is most definitely legal action, as I said, that has to be taken. Now that taken, because relocating a dog, as I said, that comes under the thing of relocation of a dog. 929 का उल्लंघन है. Also Supreme Court, Honorable Supreme Court of India का के order का ये violation है, right? So legal action aside, second part, I say कभी कभी आपको बच्चे मिल जाते हैं and you don't know what to do about them. ये बहुत बड़ी problem है with volunteers. They don't know who the mother is, and now you have like 6 puppies in your hand and you don't know what to do. So some nice results we have with आप अपने आसपास देखो कोई लैक्टेटिंग मदर जो है, जो काइंडेस्ट हो, आपको हमेशा नेचर पता होगा. So what we do is we take the pups of that mother, okay, we take a towel, we rub the puppies of that mother, then we rub that same towel on these puppies who are not of that mother, and then we rub the pups back, then these back. आप ऐसा 5-6 बार करोगे तो आप उनकी जो सेंट है ना वो मिक्स कर देते हो. Okay, so mothers, especially newborns को और छोटे puppies को केवल smell से पहचानती है. So whether we call it fooling the mother or whatever, but we have seen most of the times they accept. But you have to be at close range to see whether the mother is accepting or not. और जरूरी नहीं है सब आप एक साथ छोड़ दो. थोड़े पपीज को इधर उधर करके थोड़ा सा फैला दो, लाइक यू नो यहाँ पर मदर है, 2 उसके अपने बच्चे, 2 इनको रखो, फिर उसके अपने बच्चे एक आध 2 थोड़ा सा दूर पे रख दो. सो लाइक दैट यू आर एबल टू, बिकॉज न्यूबॉर्न बच्चों को माँ का तो जरूरत होता है. सो इट्स द बेस्ट केस सिनारियो इफ यू आर एबल टू फाइंड अ लैक्टेटिंग मदर एंड इफ यू आर एबल टू मिक्स द पपीज. एंड अगर आपको पता है कि मदर कहाँ है तो most definitely reunite the mother with the child. Nobody can separate a mother and child. And legal action to definitely.
I think that's very useful, very something, anybody can. For example, I know several individuals that ran into such a scenario, and I think this can definitely help them if they ever encounter such a scenario again. If there's no more questions, I think we'd all like to thank you, Kamna, for taking the time, especially at 4:30 in the morning in UK, and spending Now it is over an hour now with it us. is going to be 7 o'clock. Oh wow! 6:42. But so we'd like to thank you, and I'd like to thank also all of the individuals that took the time to come on this Saturday morning and listen. We appreciate your presence, and please, if you submitted your emails, we'll definitely get in touch in a day or so to send you the recording, as well as a feedback form and our social media links. So I guess thank you all for attending, and have a good morning and a good night here. Yes, from my side also, thank you all so much. It was a very long talk that we had, and thank you so much for being here. Thank you for being kind, and feel strong, because the law is what makes you strong. The law is on your side.